12th math student, let us do some more problem from exercise 13.3, chapter is probability. See question number 9. Two groups are competing for the position on the board director of a corporation. The probability that the first and the second group will win are given 0.6 and 0.4. तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है दो ग्रुप. फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए यदि फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 and the corresponding probability second group 0.3. If the second group win, find the probability that new product introduced by the second group. So you can consider here event for both the group. When first group wins, event is E1. When second group wins, event is E2. Their probabilities are given. Winning probability, उनके जीतने की probability दी हुई है. PE1 0.6, PE2 0.4. You can consider here E event when new product is introduced. तो E event है जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है. तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी when first group wins means E by E1. E1 occur तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E मीन्स न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट ग्रुप विंस E बाई E1 0.7 एंड PE बाई E2 तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन सेकंड ग्रुप विंस मीन्स E2 इवेंट है सेकंड ग्रुप का तो E2 अकर्ड हो गया. E के अकरिंग की प्रोबेबिलिटी PE बाई E2 0.3. Here you have to find the probability E2 by E. तो E2 by E means न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन वो किससे होना चाहिए सेकंड ग्रुप से मीन्स E2 इवेंट से. तो PE2 by E PE2 into PE by E2 upon total PE1 into PE by E1 plus PE2 into PE by E2 putting the values. Now see question number 11. So what is 11? The manufacturer had three machine operator A, B, C. The first operator A produced 1% defective item, B and C produced 5% and 7% defective item. Respectively, A is on the job for 50%, B 30% and C 20%. A defective item is introduced. What is the probability that it was produced by A? So here you have to find it was produced by A. So first you can consider the event E1 produced by A, E2 produced by B, E3 event produced by C. So these are mutually exclusive events. Separately produce कर रहे हैं तो exclusive events. तो PE1 है 50 by 100 50%, PE2 30 by 100 30%, PE3 20% मीन्स 20 by 100. E है चूज एन आइटम फाउंड डिफेक्टिव. तो इट इज गिवन कि जो आइटम चूज हुआ है वो डिफेक्टिव है तो उसका इवेंट लेना E. नाउ E by E1 मीन्स डिफेक्टिव आइटम होने की प्रोबेबिलिटी किससे E1 फर्स्ट प्रोड्यूस बाय A फर्स्ट से मीन्स व्हेन ए ग्रुप प्रोड्यूस हुआ उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी E बाई E1 1 by 100 इट इज गिवन. फिर PE बाई E2 मीन्स प्रोड्यूस बाई B अकर्ड हुआ तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी E बाई E2 इट इज गिवन 5% दैट इज 5 by 100 एंड PE बाई E3 मीन्स प्रोड्यूस बाई C और उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी E by E3 that is 7 by 100. But here you have to find the probability item choose an item found defective when produced by A. तो it should be from A group. तो PE1 by E means PE1 into PE by E1 upon total PE1 into PE by E1 plus
PE2 into PE by E2 plus PE3 into PE by E3. Okay, putting the value and simplify. Now see one more question. Question number 12. A card from a pack of 52 card is lost. एक कार्ड गुम जाता है. From the remaining, अब बचे हुए कार्ड कितने बचे? 51 कार्ड. इससे 2 cards are drawn and found to be both diamond. It is given जो रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड ड्रा करना है और दोनों क्या फाउंड हो रहे हैं? डायमंड. तो हियर यू कैन कंसीडर कि इवन इवेंट लास्ट कार्ड इज डायमंड. अब जो कार्ड गुम गया वो डायमंड हो सकता है और विदाउट डायमंड. तो लेट इवन लास्ट कार्ड इज डायमंड और E2 लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, मींस बिना डायमंड के रिमेनिंग से. तो व्हेन लास्ट कार्ड इज डायमंड हुज इवेंट इज इवन, तो PE1 हो गया 13 डायमंड अपॉन टोटल 52. नॉट डायमंड तो नॉट रिमेनिंग हो गए 39. 13 डायमंड हटा दो तो रिमेनिंग 52 में से तो बचे 39. तो 39 बाई 52 PE2. और E जब 2 कार्ड निकलते हैं तो फाउंड क्या है? डायमंड. तो E इवेंट है ड्रॉन कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग इज फाउंड डायमंड. ओके, नाउ तो हियर यू हैव टू फाइंड फर्स्ट PE by E1. E1 मींस व्हेन लास्ट कार्ड इज डायमंड. एक कार्ड लास्ट होता है वो डायमंड से. तो PE मतलब 2 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी जब लास्ट कार्ड डायमंड हो. तो PE by E1. तो 2 कार्ड निकालने का मतलब 12C2. एक कार्ड गुम गया है तो बचे 13 डायमंड में से 12. तो 12C2 अपॉन टोटल कितने बचेंगे? 51C2. ओके, नाउ PE by E2 मीन्स जब लास्ट कार्ड डायमंड ना हो, मतलब बिना डायमंड के रिमेनिंग 39 में से कोई एक घुमा. तो PE by E2 मीन्स E किसका इवेंट है? 2 कार्ड जो ड्रा हो रहे हैं डायमंड के लिए. तो 2 डायमंड ड्रा करने के लिए, लेकिन E2 मतलब डायमंड लास्ट नहीं हुआ, बिना डायमंड के पत्ता लास्ट हुआ, विदाउट डायमंड. तो डायमंड कितने रहे? 13 में से 2 कार्ड ड्रा करना है. तो 13C2 अपॉन रिमेनिंग 1 तो लास्ट ही हुआ लेकिन वो बिना डायमंड का है. तो रिमेनिंग में टोटल में से कितना बचा? 51. तो 51C2, ये 51C2 हो गया NS और 13C2 हो गया NE. यानी E by NS ये प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ फिर से सुनिए, PE by E1 मीन्स 12C2. E1 मीन्स व्हेन लास्ट कार्ड इज डायमंड. तो डायमंड के कितने बचे? 12 में से 2 कार्ड निकालना है. 12C2 अपॉन टोटल 51 में से 2 निकलेगा तो 51C2. और PE by E2 मीन्स व्हेन लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड. तो डायमंड का नंबर हो गया 13 में से 2 निकला, ये फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल 51C2. But here you have to find the probability when last card PE1 by E means PE1 by E means कार्ड फाउंड हो गया डायमंड का, लेकिन ये E1 पहले ग्रुप से हो. when last card is diamond तो PE1 by E that is PE1 into PE by E1 upon PE1 into PE by E1 plus PE2 into PE by E2. Okay, now putting the values.